Hello class 9 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. Okay, so previously we have been doing the chapter 6, that is tissue. Okay, in this chapter we have already talked about plant tissue. So in plant tissue we have talked about many things. Now we will in the later videos we are going to talk about the animal tissues. Okay, so in the plant tissue videos we have already discussed about what is the difference between plant tissue and animal tissue, why plant tissue and animal tissue cannot be the same, why it cannot be same, because first thing is that animal tissues have to be adapted to the locomotive phase, because animals are going to be moving from one place to another, so they have to be locomotive, they have to be adapted to the locomotive phase. मतलब उनको ऐसा होना चाहिए कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए मूवमेंट के लिए. ठीक है, whether the plant tissues are not locomotive, they are stagnant or they are stationary on a one place, right? Okay, second thing is that animal tissue consists of only living cells. Whether in the plant we have seen that many of the tissues are also made from non-living cells, right? Like xylem fiber, we have talked about that xylem fiber is the dead cell. Okay, but animal tissues, they are only made up of living cells. Okay, third thing is that animal tissues are requiring more energy. Why they are requiring more energy? Because they are locomotive, they have to move from one place to another, so they require more energy for it. Next thing is that they are heterotropic in nature. Heterotropic means that they are going to acquire the food from any other organism. Okay, it can be a plant, it can be any another animal, so they are going to take the food from other. Okay, so this is how. And next thing is that animal tissues are limited in growth, that they are going to grow to a certain height. Whether in the plants we have seen that plant grow to a not a particular height, they just grow unlimitedly, right? So this is what a difference between the animals and plant tissue. Okay, next thing is that एनिमल टिश्यूज़ आर ऑफ 4 टाइप्स. ठीक है, एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? 4. एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. Okay, these are the 4 types. In this video we are going to only talk about epithelial tissue. ठीक है, epithelial tissue and its 5 types. इसके 5 जो types हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में. Okay, so just have a look on the epithelial tissue. First we should be knowing what actually epithelial tissue is, or we also call it as epithelium. Okay, epithelial tissue is a protective tissue. Okay, it is going to protect the animal body. Animal में humans भी आ जाते हैं. Okay, in biology language animals include everybody, humans as well as all the animals. So an outermost layering and the inner layering where the tissues are going to be protected. ठीक है, the other organs are going to be protected, other internal delicate organs are going to be protected by the epithelial. Okay, this is somewhat like epidermis we have talked about in plant body. Epidermis is present outside the plant body, whole plant body. That ठीक है, प्लांट बॉडी में एपिडर्मिस का काम था उसको प्रोटेक्ट करके रखना. मैंने बताया था आपको फंगल इन्वेजन से फंगस इजीली प्लांट के अंदर घुस ना पाए, उसके लिए एपिडर्मिस उसे प्रोटेक्ट करती है. सेम एज इट इज़ एपिथेलियल भी ऐसे ही काम करती है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दैट एपिथेलियल टिश्यू लाइज ऑन अ डेलिकेट बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट का मतलब होता है सबसे नीचे. ठीक है, एक मेम्ब्रेन है, एक पतली सी लेयर है जिसके ऊपर सारी एपिथेलियल की सेल्स मिलकर एक एपिथेलियल टिश्यू बनाएंगी. ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये. ठीक है, जो नीचे की रेड लेयर दिखाई दे रही है बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक तरह से नींव है जिसके ऊपर एपिथेलियल सेल्स टिकी होंगी. ठीक है,
नेक्स्ट थिंग इज द सेल्स इन दिस टिश्यू इज आर गोइंग टू बी टाइटली पैक्ड, ज़्यादातर टाइटली पैक्ड होती हैं, बहुत ही रेयरली आपको बीच बीच में इनके स्पेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, बहुत ही रेयर केसेस में आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिल सकते हैं, पर ज़्यादातर नहीं देखने को मिलते। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 5 types of it. First is squamous, so we are going to see the squamous tissue now. Okay, squamous, as the name suggests, a square shape, but actually squamous tissues are not exactly square in shape. जैसे आप एक मैथ्स में स्क्वायर देखते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली स्क्वामस स्क्वायर शेप के नहीं होते, दे कैन बी इरेगुलर, ठीक है, कैसे भी हो सकते हैं, ऐसे शेप का, ऐसे ऐसे कैसे भी हो सकता है, ठीक है, दैट दे आर नॉट एग्जैक्टली स्क्वायर। बट स्क्वायर कहने का मतलब ये है 2D, 2D का मतलब आपने देखा होगा मैथ्स में, आपको 2D और 3D स्ट्रक्चर्स बताए होंगे। 2D में स्क्वायर आ जाता है जहाँ पे आपके 2 ही डायमेंशन होते हैं, एक तो लेंथ होती है ना, ओके, लेंथ होती है, और दूसरी क्या होती है, ब्रेथ होती है। अब विड्थ आ जाती है, विड्थ कब आती है, जैसे कि आपने क्यूब देखा होगा, क्यूब बनाना सिखाया होगा आपको सर ने, आपके मैथ्स टीचर ने, राइट। तो दिस इज हाउ अ क्यूब इज लाइक, थोड़ा इम्परफेक्ट टाइप ऑफ होगा, ठीक है, थोड़ा सी इसी से काम चला लेते हैं हम, ठीक है। दिस इज़ अ क्यूब, और बहुत ही गंदा वाला क्यूब बना है, ठीक है। तो क्यूब क्या है, एक आपका 3D स्ट्रक्चर है जहाँ पे लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, और विड्थ, मोटाई आ जाती है उसकी। जबकि स्क्वामस एपिथेलियम कैसी होती है, आपकी पतली होती है, ठीक है, पतली सी लेयर, थिन लेयर होगी, डेलिकेट मतलब नाजुक है, पतली है तो ऑब्वियसली बहुत नाजुक होती है, फ्लैट है, बिल्कुल चपटी है, ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। इरेगुलर शेप में, मैंने आपको बताया एग्जैक्टली स्क्वायर शेप नहीं होती, तो ये इरेगुलर शेप होने के बावजूद भी ये एक दूसरे में, जैसे एक टाइल्स आपने देखी होंगी अपने घर में, तो टाइल्स एक दूसरे में अच्छी तरह से फिट होती हैं ताकि बीच में कम से कम स्पेस बचे, राइट। तो वैसे भी ये वाली सेल्स भी स्क्वायर ना होके भी तभी भी एक दूसरे में अच्छी तरह से फिट रहती हैं। इनके बीच में, जैसे आपने टाइल्स के बीच में देखा होगा कि सीमेंट वगैरह फिल्ड होता है बीच बीच में ना, वैसे ही इनमें भी ऐसे फिल्ड रहता है, ठीक है, ताकि ये अटैच्ड रहें एक दूसरे से अच्छी तरह से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, कभी कभी जैसे आपकी जो हमारी जो बॉडी है, आपको जैसे मान लेते हैं विंटर्स का टाइम चल रहा है, ठीक है, विंटर्स में आपने एक स्वेटर पहना, बट आपको तभी भी ठंड लग रही है, तो आप एक और लेयर पहनेंगे, ठीक है, तभी भी ठंड लग रही है, एक और लेयर पहन लेंगे, तो ऐसे करके आप और लेयर्स चढ़ा लेते हैं ताकि प्रोटेक्शन बने रहे, ठीक है। तो कभी कभी किसी किसी जगह पे हमारी बॉडी में ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, जैसे कि स्किन, हमारी जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को किसी भी बाहर से हमें सबसे ज़्यादा कहीं से भी इन्वेजन हो सकता है, हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ एंटर कर सकती है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी स्किन प्रेजेंट है। बट स्किन इतनी पतली नहीं हो सकती कि आपकी, जैसे सिंपल स्क्वामस है, इतनी पतली नहीं हो सकती आपकी स्किन, बड़े इजीली कोई भी अटैक कर देगा, ठीक है। तो उसके लिए आपकी स्किन को कैसा होना पड़ेगा, थोड़ा सा मोटा होना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है। तो स्किन जो है आपकी, ये स्क्वामस एपिथेलियम से ही बनी होती है, बट इसकी बहुत सारी लेयर्स है, एक लेयर ये दिख रही है आपको, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर है ये, पांचवी लेयर, ऐसे करके बहुत सारी लेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी लेयर क्या कर रही हैं, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं ऐसी जो लेयर होती है, जब भी आपकी स्क्वामस या फिर किसी भी शेप की आपकी जो सेल एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, वो एक के ऊपर एक लग जाती हैं और एक बहुत सारी लेयर्स में लग जाती हैं, तो उसे स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वामस एपिथेलियम है, तो इसलिए इसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम बोलेंगे, ठीक है। बात समझ आई, बस ये लेयर्स में लगी हुई है ताकि वियर टियर कम से कम हो सके, प्रिवेंट वियर एंड टियर, वियर एंड टियर मतलब कटना फटना जो है वो कम से कम हो सके, हमारी बॉडी प्रोटेक्ट कर सके, हमारी स्किन जो है बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके अच्छी तरह से, ठीक है। अच्छा, तो स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है, लाइनिंग ऑफ द माउथ, हमारे मुंह के अंदर जो
पूरी अंदर की साइड आपको लेयर दिखाई दे रही है स्किन की, या फिर आप कह सकते हैं एपिथेलियम ही है वो, ठीक है। ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप, खाना जिससे माउथ से स्टमक तक पहुंचता है उसे हम ईसोफेगस बोलते हैं। ईसोफेगस की भी लाइनिंग किससे बनी होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम से। स्किन मैंने आपको बता ही दिया कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से, मतलब है तो स्क्वैमस ही ना, तो स्क्वैमस से बनी हुई है। अच्छा, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की जो नलियाँ होती हैं जिससे खून पास होता है, वहाँ पे भी स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, पतली सी लेयर प्रेजेंट होगी। क्यों, मैं अभी बताती हूँ आपको। और लंग्स और एल्वुलाई में भी पतली सी स्क्वैमस लेयर, एक ही लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। लंग एल्वुलाई क्या होती हैं? लंग्स के अंदर कुछ ऐसी आपकी, जैसे कि गोभी देखी है आपने, फूल गोभी, ठीक है, कुछ इस तरह की दिखती है एल्वुलाई भी। इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अंदर बाहर करती हैं लंग्स के थ्रू, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी पतली सी लेयर प्रेजेंट होती है। अच्छा, तो अगर हम बात करें कि ये जो हमने ब्लड वेसल और लंग्स की बात, लंग एल्वुलाई की बात करी, तो ये कैसे काम करती है? सिलेक्टिवली परमेबल सरफेसेस की तरह काम करते हैं। सिलेक्टिवली परमेबल सरफेस का मतलब क्या है? कुछ चीज़ों को अंदर आने देगी और कुछ ही चीज़ को बाहर जाने देगी। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर डाल देता है एल्वुलाई, जो हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं ना, उसे ब्लड के अंदर डाल देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी बनाती है उसे बाहर निकाल देता है, ताकि हम सांस में बाहर क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो हमारी बॉडी से ही आई है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो हमने सांस लेते हुए अंदर ली है वो हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम एल्वुलाई कर रही है, ठीक है। तो सेलेक्ट करके तो भेज रही है, अंदर बाहर करवा रही है, तो फिल्ट्रेशन का काम कर रही है ना एक तरह से, ठीक है। वैसे ही ब्लड भी कर रहा है, अभी यहाँ बताया मैंने आपको, तो यहाँ पे ये किसके अंदर जा रहा होगा? ब्लड के अंदर से ही तो जा रहा है, ये ब्लड वेसल मान लो, तो यहाँ अंदर बाहर कैसे करेगा? अगर पतली सी लेयर नहीं होगी, जैसे कि आपको छानना है कोई चीज़, तो बहुत ही मोटी अगर कोई कपड़ा या ऐसा कुछ ले लोगे तो वो छान थोड़ी पाएगा इजीली, उसके थ्रू इजीली नहीं जा पाएगा, पतला सा चाहिए होगा ना, कोई बहुत ही पतला सा रुमाल या ऐसे कुछ चीज़ें चाहिए होगी जिससे जा सके। इसलिए यहाँ पे आपके ब्लड वेसल्स में और एल्वुलाई में आपको क्या मिलता है? पतली सी स्क्वैमस लेयर देखने को मिलती है, ठीक है। चलो इसे इरेज कर देते हैं, बहुत गंदा हो गया यहाँ पे। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम है, इनका और क्या फंक्शन है? मैकेनिकल इंजरी नहीं होने देती, मतलब किसी ने आपको मारा है एकदम से आपकी, तो आपके कम से कम चोट लगेगी अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि एक बाहर प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। और जर्म्स की एंट्री भी से भी बचाएगा। अगर लंग्स, स्टमक वगैरह खुले में होते, बाहर कोई लेयर नहीं होती है, कवरिंग हमारी स्किन की नहीं होती, तो कोई भी आराम से अंदर घुस जाता है ना। तो ये हमारी स्किन जो है हमें बचा रही है इन सब चीज़ों से, केमिकल से, बाहर जो केमिकल्स हैं उनसे ही बचाती है। ड्राइंग, सूखने से भी, मतलब एकदम से सूखा नहीं पड़ जाएगा एकदम से, क्योंकि जो हम पानी पी रहे हैं वो एकदम से बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि एक स्किन की एक लेयर है जो प्रोटेक्ट कर रही है इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट द स्क्वैमस एपिथेलियम इज़, ओके। चलिए हम आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया? अच्छा, जो ये टाइप्स हैं आपके एपिथेलियम के, ये आपके किस बेसिस पे? शेप के, अभी हमने शेप देखी स्क्वैमस, और फंक्शन, काम के बेसिस पे ये हमने टाइप्स बांटे हैं, ठीक है। फिर हम दूसरा जो टाइप देखेंगे वो है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल से हमें नाम से ही पता चल रहा है 3D स्ट्रक्चर होगा, एग्जैक्टली क्यूबॉइड नहीं होगा। क्यूबॉइड आपने जैसे मैथ्स में पढ़ा है, क्यूब मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर होगा, ओके, ठीक है, कुछ इस तरह का, ठीक है, रफ सा है, चलिए काम चल जाएगा इससे। तो एक क्यूब की शेप का 3D स्ट्रक्चर, ठीक है, मोटाई होगी इसकी। तो यहाँ देख सकते हो आप, ये भी एक क्यूब है ना, क्यूब दिख रहा है आपको, साइड से दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो ये एक क्यूब है। तो क्यूबलाइट सेल्स होती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, इनकी लोकेशंस क्या हैं? किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी मतलब आपकी जो किडनीज जो होती हैं उनके अंदर ट्यूब्स होती हैं पतली पतली, जिससे कि जो गंदगी है वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल सके, ठीक है। टॉक्सिन्स जो होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं, तो फिल्टर करने का काम करती है। वहाँ पे भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और कुछ ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट होती है। ग्लैंड्स मतलब
अभी हम आगे इसको समझते हैं। ग्लैंड्स क्या होती हैं। ग्लैंड्स क्या होता है आपका कि कुछ चीज़ें फॉर्म करती है, मतलब जैसे आपकी जैसे कि हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में। आपने सुना होगा इंसुलिन, इंसुलिन सुना होगा शायद आपने। या फिर हम एक बहुत ही इजी एग्जांपल इसका लेते हैं, स्वेट। यहाँ पे सीट लिखा हुआ है, गलती से हो गया, इट इज़ स्वेट। ठीक है, स्वेट मीन मतलब पसीना। ठीक है, पसीना, पसीने की ग्लैंड्स। हम जब गर्मियाँ हैं अभी तो पसीना निकलता है हमारी बॉडी से। कैसे निकल रहा है, हमारी स्किन के ऊपर ही छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, पोर्स हैं ऐसे जिनके अंदर स्वेट जो है बन रहा है। ठीक है, पानी ही होता है, उसमें कुछ टॉक्सिन्स भरे होते हैं बस, जो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं उन्हीं को बाहर निकालता है स्वेट। ठीक है, अच्छा अब हम अपने माउथ में देखें तो माउथ में आपने देखा होगा जब आप खाना खाते हैं तो हम बोल रहे हैं कि मुंह में पानी आ रहा है। मुंह में पानी आना मतलब वो सलाइवा होता है। ठीक है, थूक होता है हमारे माउथ में। एक्चुअल में उसका एक वर्क ये होता है कि हमारे खाने को सॉफ्ट कर देता है। ठीक है, तो वो कहाँ से रिलीज़ होता है, हमारे मुंह में ही अंदर एक ग्लैंड होती है जिसे हम बोलते हैं सेलिवरी ग्लैंड, जिसमें से सलाइवा जिसमें बनता है और वहीं से आता है हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा पैंक्रियाज, ये सब कुछ ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि कुछ चीज़ें बनाती हैं और बाहर रिलीज़ करती हैं, ताकि कुछ डाइजेशन में हमें काम करवाती हैं, कुछ हमें हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स वगैरह बाहर निकाल देती हैं, एक्सक्रीशन करवाने में काम करी हैं। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं इनके। तो अभी मैंने बताया था आपको, तो इनके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने आपको किडनी ट्यूब्यूल्स के बारे में बताया था। तो किडनी ट्यूब्यूल्स कुछ चीज़ें जो हमने अगर जैसे कि जो टॉक्सिन्स हैं उसके साथ साथ वाटर भी चला गया आपका यूरिन में जाने के लिए तैयार है, बट हम नहीं चाहते, हमारी बॉडी नहीं चाहती है कि हम इतना पानी वेस्ट करें, तो वो वापस भी ले लेती है। तो एब्जॉर्प्शन का भी काम करती है आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, और एक्सक्रीशन का, अभी मैंने स्वेट का एग्जांपल दिया, मैंने कहा स्वेट में टॉक्सिन्स भी रिलीज़ होते हैं हमारी बॉडी से। ठीक है, तो एक्सक्रीशन का मतलब ये है कि वेस्ट बाहर निकालना हमारी बॉडी से। ठीक है, और सिक्रीशन मतलब कोई चीज़ बना के उसको बाहर निकालना। ठीक है, सिक्रीट करती है, ग्लैंड्स के थ्रू होता है ये। ठीक है, अच्छा तीसरा आपका टाइप आ जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू मैंने अभी बताया आपको, ग्लैंड्स। तो अगर कोई क्यूबॉइडल सेल ही है और वो क्या कर रही है आपकी सिक्रीशन कर रही है, ठीक है, कुछ केमिकल्स वगैरह बना रही है, तो उसे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू बोल देते हैं। ठीक है, ये मेनली क्यूबॉइडल शेप की होती है, कॉलमिनर शेप की भी हो सकती है। कॉलमिनर शेप अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू का काम क्या है, आपका ग्लैंड्स में से आपके कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करना। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज कॉलमिनर एपिथेलियम। अभी मैं बता ही रही थी आपको। कॉलम आप कैसे कहते हैं, जो लंबाई में हो, जैसे कि पिलर होते हैं ना, जो खंबे होते हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबे हों तो उन्हें हम कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कॉलम शेप की सेल्स हैं तो उन्हें कॉलमिनर एपिथेलियम टिश्यूज़ कह रहे हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपकी स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में। आपका पूरा पेट और इंटेस्टाइन, उनमें लाइनिंग किसकी होती है, कॉलमिनर की होती है। स्टमक और इंटेस्टाइन में सबसे मेन जो काम चल रहा होता है, एक तो एब्जॉर्प्शन का, खाना जो हम पचा रहे हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने का काम स्टमक और आपके इंटेस्टाइन वगैरह में होता है। ठीक है, तो वहाँ एब्जॉर्प्शन का काम चलेगा। सिक्रीशन, पेट में जब खाना पचता है तो बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वो कहाँ से आ रहे हैं, कॉलमिनर एपिथेलियम से आ रहे हैं। ठीक है, फिर आपका आता है सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। क्या है आपकी, जिसमें आपकी कॉलमिनर शेप की या फिर क्यूबॉइडल शेप की हो सकती है ये। इसमें क्या होता है कि कुछ सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इन सेल्स के ऊपर। अगर ये वाली कॉलमिनर की बात करें तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, अगर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलेंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। ये क्यूबॉइडल और कॉलमिनर दोनों शेप की हो सकती हैं। ठीक है, फिर ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बाल वाले स्ट्रक्चर्स की क्या ज़रूरत है हमारी बॉडी के अंदर। बाहर हमारी सर पे तो बाल होते ही हैं, बट अंदर भी क्यों बालों की ज़रूरत है। ये एक्चुअल में हेयर वाला फंक्शन नहीं करते, इनका काम होता है किस चीज़ को आगे की तरफ पास करवाना। जैसे कि आपने देखा होगा बोट, एक नाव होती है,
ठीक है, नाव में चप्पू चलाते हैं, ठीक है, ताकि जो आपका पानी को पीछे की साइड धक्का मार सके, ठीक है, मूव करवाने का काम करें ना पानी को, ठीक है, पानी को मूव करवाने का काम करवा रहे हैं। तो ऐसा करके यही काम हमारा सीलिया भी कर रही है। तो अगर किसी चीज़ को आगे की तरफ मूव करवाना है तो सीलिया उस चीज़ को करेगा, ठीक है, आगे की एक डायरेक्शन में मूव करवाएगा। तो ये ट्रैकिया, हमारा विंड पाइप, जहाँ से सांस जाती है हमारे लंग्स तक, उसे ट्रैकिया बोलते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होती है। ब्रोंकाई आपकी एल्वोलाई से पहले पाइप ही है, ठीक है, पाइप्स हैं जिसमें आगे चल के एल्वोलाई लगे होते हैं, ठीक है, इन्हें ब्रोंकाई बोलते हैं। तो ब्रोंकाई आपके वहाँ पे भी प्रेजेंट होती है आपकी सिलिया, क्योंकि वहाँ हवा को आगे साइड मूव कर रहा है ना। और स्पर्म डक्ट और ओविडक्ट, अच्छा ये हम आगे चल के, वैसे आपने ये आई थिंक 8th क्लास में ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। स्पर्म डक्ट क्या होती है? स्पर्म प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड्स जो होती हैं, वहाँ से स्पर्म जब बाहर निकलता है तो स्पर्म को आगे की तरफ मूव करवाने के लिए, ताकि एक डायरेक्शन में मूव करवाया जा सके, स्पर्म डक्ट में भी सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। और ओविडक्ट मतलब जहाँ पे एग बन रहा है, ओवा बन रहा है फीमेल के अंदर, तो वो भी जो है कहाँ प्रोड्यूस, वहाँ पे भी आपकी सीलिया प्रेजेंट होंगी, ताकि एग को आगे तरफ मूव करवाया जा सके, ठीक है। तो इसका फंक्शन मैंने बता ही दिया है कि सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं या कोई भी पार्टिकल, उसको एक डायरेक्शन में मूव करवाने का काम कौन करेगा? सीलिया करता है, ठीक है। तो ये सीलिएटेड एपिथेलियम हो गई आपकी। अब अगर हम इसी में बात करें तो हमने अभी तक 5 टाइप आपके किस बेसिस पे पढ़े? वो शेप और फंक्शन के हिसाब से। अगर हम एपिथेलियल को 2 टाइप में बांटें, नंबर के हिसाब से, नंबर ऑफ़ लेयर्स के हिसाब से, कितनी लेयर्स लगी हुई हैं, तो 2 टाइप के हो सकते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल में मतलब एक ही लेयर प्रेजेंट है, और स्ट्रेटिफाइड में बहुत सारी लेयर प्रेजेंट है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है, तो स्ट्रेटिफाइड हो गई, ठीक है। आई थिंक एवरीबडी वुड हैव अंडरस्टूड इट नाउ, ओके। तो एक बार इसका दोबारा से एक बार देख लेते हैं थ्रू दिस चार्ट। एपिथेलियल टिश्यू हमने समझा, ठीक है, उसमें स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनर, सीलिएटेड और ग्लैंडुलर हमने पढ़ लिया, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मस्कुलर टिश्यूज़, और मस्कुलर टिश्यूज़ के 3 टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।